بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ درود پاک پڑھنے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز سامعین و حاضرین، میں آج آپ حضرات کے سامنے چند لمحات کے لیے حاضر ہوا ہوں اور آج ایک بات بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں اور ذمہ دار ہوں اس جملے کا۔ لکھ لیجیے، الحمدللہ فضل حق قادری جو بولتا ہے یہ میرے استاد محترم کی دعاؤں کا اور ان کی محنتوں کا نتیجہ ہے کہ حوالہ ساتھ رکھتا ہے۔ آج آپ کو حوالے سے سننا ہے اور انشاءاللہ حوالہ بھی بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد کا چلے گا۔ دوسری بات، آپ کو ایک بات اور بتا دوں کہ استاد محترم استاد القرہ حضرت قاری انعام الحق صاحب نگلا آپ حضرات کے سامنے جلوہ بار ہوں۔ آج میں ایک بات آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کو بہت خاموشی کے ساتھ اور بہت ادب کے ساتھ بیٹھے رہنا ہے جب تک حضرت کا نمبر نہ آ جائے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت ایک اچھے قاری کے ساتھ ساتھ ایک اچھے شاعر بھی ہیں۔ ایک بات اور بتاؤں، علماء کا مجمع ہے، سب جانتے ہیں، امام علم و فن حضرت خواجہ مظفر حسین صاحب کو کون نہیں جانتا، رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضرت نے ان کے دور میں چرہ محمد پور میں حفظ اور قرات پڑھائی ہے۔ ایک بات اور بتا دوں کہ لچھم پور کی سرزمین کے جتنے بھی طلبہ پڑھ رہے ہیں سب حضرت کے شاگرد ہیں، اور اس بات کو کہنے میں پوری ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یہ بات بھی کہنے میں الحمدللہ تاجدار اہل سنت کی دعاؤں کا اثر ہے کہ کوئی بات ہم کمزور نہیں بولتے۔ یہ بات بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ میں جتنی جگہ بھی قرآن مجید سنانے گیا ہوں یا میں نے گاؤں میں بھی سنایا ہے، لوگ بہت تعریف کرتے ہیں۔ میں اس لائق نہیں ہوں، میں تو کچھ نہیں ہوں۔ اگر مجھے اس لائق بنایا ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں تو یہ میرے استاد محترم کی دعا اور محنتوں کا نتیجہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے استاد کو عمر دراز عطا فرمائے۔ حضرت مولانا حافظ دانش صاحب نگلا کے بارے میں کچھ اشعار لکھ کر لائے ہیں، کیونکہ شاعر ہیں، میں بتا چکا ہوں۔ آپ کو وہ اشعار سن کر بھی جانا ہے، اور میرے پھپھا میں میری آواز کو سنتے ہوں گے تو پہلے اگلی لائن میں آ جائیں، کیونکہ آپ نے قاری صاحب کو بلایا تو آپ قاری صاحب کی طرف زیادہ توجہ رکھیں۔ تو آپ کو میری بات بہت توجہ سے سننا ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنی تقریر سے قبل حضور تاج الفضول محب رسول امام عبد القادر القادری البدایونی رضی اللہ تعالی نفر اللہ مرقدہ کے دو اشعار سے حصول برکت کے لیے اپنی تقریر کا آغاز کر رہا ہوں۔ حضور تاج الفضول فرماتے ہیں، توجہ چاہوں گا، پھرتے کب تک ہند میں ہم ٹھوکرے کھاتے ہوئے۔ اب میں نے کہا کہ حضور تاج الفضول فرماتے ہیں، آپ نے سوچا ہو کوئی شاعر ہوں گے ہلکے پھلکے۔ آپ کو بتا دوں، الحمدللہ اس کا حوالہ سن لیجیے، یہ میں نے خود حضور تاج الفضول علیہ الرحمہ کے ہاتھ سے لکھا ہوا پڑھا جب میں لائبریری کے اندر موجود تھا۔ حضور تاج الفضول علیہ الرحمہ کا یہ مقام تھا۔ توجہ چاہوں گا، جب بغداد کی سرزمین پر جایا کرتے تھے تو بغداد کا سجادہ وسیع ان کے اندر اوپر کو چھوڑ دیا کرتا تھا۔ اتنا بڑا مقام تھا کہ اپنی کرسی سے اتر جاتے تھے اور حضرت کو بٹھایا کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت تاج الفضول علیہ الرحمہ کے والد محترم بغداد شریف کے جو سجادہ نشین تھے ان کے استاد تھے۔ دوسری بات یہ بتا دوں، سنتے رہیے، ابھی میں اپنی تقریر پہ آ رہا ہوں انشاءاللہ، زیادہ وقت نہیں لوں گا کہ حضور تاج الفضول علیہ الرحمہ یہ کس ذات کا نام ہے۔ آپ ان کا جب کلام سنیں گے تو آپ کو ایک الگ لطف آئے گا۔ جب آپ صحیح فرما رہے تھے، جب آپ مکہ مکرمہ کے اندر صحیح فرما رہے تھے، جب آپ حج کے لیے تشریف لے گئے صحیح فرما رہے تھے، تو آپ نے اپنے ماتھے کی آنکھوں سے سرکار بغداد کو دیکھا ہے، حضور غوث اعظم کو دیکھا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ ادب سے کیوں چل رہے ہیں، دھیرے دھیرے کیوں
चल रहे हैं आप, ये तो सही है, यहाँ पर दौड़ जाता है, यहाँ पर दौड़ लगाई जाती है, आप धीरे धीरे तो चल रहे हैं। हजरत ताजुल कबूल फरमाते हैं, अरे मैं तेज कैसे चल सकता हूँ, मेरे आगे गौसे आजम चल रहे हैं, उनके अदब में धीरे धीरे चल रहा हूं। और ये कौन थे ताजुल कबूल? ये हुजूर सालमी साहब के दादा थे। मैं आपको आसान लफ्जों में समझा, ये उनके दादा जान थे, ये उनके दादा जान थे। तो अब उनके अशार सुनिए, आपको मजा आ जाएगा कितनी बड़ी शख्सियत है, बगदाद में क्या मकाम है। मुझे नफीस बदायूनी का एक शेर याद आ रहा है कि बारगाहे गौसियत में किसकी ऊंची बात है। उन्होंने अपने अंदाज में कहा था कि बारगाहे गौसियत में किसकी ऊंची बात है, मैं बताऊं वो फकीर कादरी की जात है, मैं बताऊं वो फकीर कादरी की जात है। अब मैं अपनी तकरीर की तरफ आता हूं तो दो शेर सुनिए कि फिरते कब तक हिंद में हम ठोकरे खाते हुए, फिरते कब तक हिंद में हम ठोकरे खाते हुए, चल दिए सुए मदीना दिल को बहलाते हुए, चल दिए सुए मदीना दिल को बहलाते हुए। और आदमी तो आदमी, ऊंटों की देखो चाल ढाल। ये उस दौर की बात है, तवज्जो चाहूंगा हाफिज साहब, ये उस दौर की बात है कि जब लोग सफर ऊंटों से किया करते थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार की तरफ सिर्फ इंसान ही झूम कर नहीं चलता था, बल्कि जो लोग रसूलुल्लाह के दरबार की तरफ जाते थे वो भी उसमें रसूल में अपनी किस्मत पर इतराते हुए चलते थे। हुजूर ताजुल कबूल फरमाते हैं कि आदमी तो आदमी, ऊंटों की देखो चाल ढाल, हालते मस्ती में चलते हैं वो इतराते हुए, हालते मस्ती में चलते हैं वो इतराते हुए। मौजूद सामीन और हाजरीन, मैं ये चाहता हूं कि आप हजरात के सामने कुरान और हाफिज कुरान की कुछ फजीलत बयान करूं। हदीस पाक है, अब हवाला सुनिए, आपको मजबूती हो जाएगी कि कोई बात कमजोर नहीं बोली। इमाम तिर्मिज़ी ने इसको रिवायत किया, इमाम बज़्ज़ार ने इसको रिवायत किया है, इमाम इब्न अबी शैबा ने इसको रिवायत किया है, इमाम तबरानी ने इसको रिवायत किया। 4 इमामों ने इसको लिखा है। मेरी नॉलेज के मुताबिक 4 इमामों जो मेरी नजर से गुजरा। आप सुनिए हदीस, मन क़रअ हरफन मिन किताबिल्लाह फलहू बिही हसना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अब सुभान अल्लाह कहना है कि जिस शख्स ने कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ा, फलहू बिही हसना, तो उसके लिए एक नेकी उसके नामे आमाल में लिख दी जाती है। अब आप सोचते होंगे एक हर्फ पढ़ा और एक नेकी लिख दी तो क्या कमाल की बात। आगे रसूलुल्लाह ने इसका जवाब दे दिया कि पढ़ तो एक हर्फ रहा है, बज़ाहिर नेकी भी एक मिल रही है, लेकिन ये एक नेकी नहीं है, कुरान का मकाम ये है, बोल ये एक नेकी 10 नेकियों के बराबर होती है जो कुरान मजीद का एक हर्फ पढ़ने पर मिलती है। अब जरा सोचिए कि जब कुरान का एक हर्फ पढ़ने पर एक नेकी मिल रही है और 10 नेकियों के बराबर है, तो जो हाफिज़ कुरान अपने सीने के अंदर कुरान को बसाता होगा उसकी नेकियों का आलम क्या होता होगा। एक बात और बताऊंगा, ये भी हदीस के हवाले से ही बताऊंगा। अब आप सोचते होंगे कि एक हर्फ होगा क्या, अलिफ लाम मीम एक हर्फ होगा, ज़ालिका एक हर्फ होगा, अल किताब एक हर्फ होगा। नहीं, रसूलुल्लाह ने फरमाया ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। नबी करीम ने फरमाया कि अलिफ लाम मीम मुकम्मल एक हर्फ नहीं है, तवज्जो चाहूंगा, बल्कि अलिफ एक हर्फ है, लाम एक हर्फ है, मीम एक हर्फ है। अलिफ लाम मीम के अंदर 3 हर्फ हो गए, 3 ये 3 नेकियां मिली, लेकिन एक नेकी 10 नेकियों के बराबर है, तो 3 नेकियां 30 नेकियों के बराबर होगी। यह है कुरान का मकाम। अब दूसरी हदीस पाक सुनिए, इसको इमाम दाऊद ने रिवायत किया है, इमाम अबू याला ने रिवायत किया है, इमाम हाकिम ने रिवायत किया है, इमाम अहमद ने अपनी किताब के अंदर रिवायत किया है। अब हदीस सुनिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जैसे कि अभी मुफ्ती साहब ने यही हदीस बयान की थी, मगर मैं आपको एक नए जाविये से बताना चाहता हूं। मन क़रअल कुरान व अमिला बिमा फीह, तवज्जो चाहूंगा कि जिस शख्स ने कुरान मजीद पढ़ा, जिस शख्स ने कुरान मजीद पढ़ा, वो अमिला बिमा फीह,
की तालीम पर, कुरान मजीद के मैसेज पर, कुरान मजीद के बताए हुए रास्ते पर चला, कुरान की बताए हुए अहकाम पर अमल किया। यानी किसी शख्स ने कुरान मजीद को पढ़ा, कुरान को अपने सीने में बसाया और उसकी तालीम पर अमल किया, तो क्या इनाम मिलेगा? कल क़यामत के दिन उसके माँ बाप को जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। और ये ताज कैसा होगा? दौउहु अहसन मिन दौइ शम्स फी बुयूति दुनिया। इसकी रोशनी, इसकी चमक ऐसी होगी, दुनिया में जैसे सूरज चमकता है उससे कहीं ज्यादा इस ताज की रोशनी होगी। मुबारक हो लोगों जिनके बेटे हाफिज़ कुरान है, कल क़यामत के दिन उनको ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी सूरज से कहीं ज्यादा होगी। अब ये हदीस सुन लिया आपने, अब बहुत तवज्जो चाहूंगा, मेरी तरफ देखकर रहिए, आपको एक नई बात बताकर जाऊंगा इस हदीस के अंदर। जब मैंने इस हदीस को पढ़ा, जब मैं इस हदीस को पढ़ के बैठा, तो फौरन मेरे ध्यान में सवाल आया, क्योंकि मैं एक तालिबे इल्म हूं और तालिबे इल्म के ध्यान में तो सवाल आते ही रहते हैं। तो मेरे ध्यान में एक सवाल आया कि पूरी जिंदगी मेहनत बेटा कर रहा है, कुरान को याद बेटा कर रहा है, माँ बाप से दूर मदरसे में बेटा रह रहा है, सारी परेशानियां बेटा उठा रहा है, ताज माँ बाप को पहनाया जा रहा है, आखिर ऐसा क्यों? एक जहन में सवाल आता है। हकीकत तो यह होना चाहिए थी, जो करे वो पावे। हिफ्ज़ जिसने किया ताज उसको पहनाना चाहिए था, कुरान को सीने में जिसने बसाया ताज उसको पहनाना चाहिए था। माँ बाप को ताज क्यों पहनाया जा रहा है? उन लोगों को मुबारक हो कि जिन्होंने अपने बेटे को हाफिज़ कुरान बनाया है। अब सवाल ये जहन में आया कि आखिर बेटा हिफ्ज़ कर रहा है, बेटा मेहनत कर रहा है, बेटे ने याद किया है, ताज माँ बाप पहनेंगे, बेटे को ताज क्यों नहीं पहनाया जा रहा है? इसका जवाब कुछ देर के बाद मेरे जहन में ये आया कि माँ बाप को ताज इसलिए पहनाएगा, इसलिए कयामत के दिन पहनाया जाएगा कि माँ बाप ने बेटे के सीने में कुरान बसवाने में मेहनत की थी, ये कोशिश की थी कि बेटे के सीने में कुरान बस जाए, इसलिए माँ बाप को जन्नत का ताज पहनाया जाएगा। अब तवज्जो चाहूंगा कि जब कुरान के सिलसिले में कुरान को बसवाने वाले का ये आलम है कि उसको जन्नत का ताज पहनाया जा रहा है, तो जो शख्स जो हाफिज़ कुरान अपने सीने में कुरान बसाता होगा, कल क़यामत के दिन उसका क्या मकाम होगा अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जब कुरान को बसवाने में जो शख्स मेहनत कर रहा है, समझ में आ रही है बात, कि जो शख्स मेहनत कर रहा है कुरान को बसवाने में, उसका ये आलम है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि जन्नत का ऐसा ताज पहनाया जाएगा कि उसकी रोशनी सूरज से कहीं ज्यादा होगी। तो फिर जिसने कुरान सीने में बसाया है उसके मकाम का अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। बात समझ में आ रही है? अब एक तीसरी हदीस से बात सुनो, अब बड़ी दिलचस्प बात बताता हूं, तवज्जो चाहूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात फिर कहूंगा, और ये कोई घमंड में नहीं है, ये मैंने पहले कह दिया कि मैं जो कुछ हूं मेरे उस्ताद मोहतरम है, इनकी मेहनतों का नतीजा है। हवाया सुनते जाइए, आज से आप कान खोलकर सुन जाइए कि फजल हक कादरी जो बात बोल रहा है कुरान और हदीस की रोशनी बोल रहा है। ये हदीस कहां है? बुखारी, मुस्लिम और मुत्तफक अलैह हदीस है। मुत्तफक अलैह होना ये हदीस की एक इस्तिलाह है, उलमा बैठे हैं, तो बुखारी और मुस्लिम ने इस हदीस को रिवायत किया है, इमाम हाकिम ने भी इस हदीस को रिवायत किया है, लेकिन थोड़ा इख्तिसार कर दिया है, मुख्तसर कर दी। अब हदीस से बात सुनिए, मेरी तरफ तवज्जो रखें, मेरी तरफ तवज्जो रखें। कभी कभी ऐसा होता है, अब एक बात सुन लीजिए, कि आदमी कुछ का कुछ सुन जाता है या पसे मंजर हटा देता है। एक साहब थे, एक चुटकुला है, एक साहब थे, तो वो एक मौलाना साहब की तकरीर सुन रहे थे। मौलाना साहब ने बताया होगा कि बीवी के साथ अच्छा सलूक करना चाहिए और बीवी कैसा भी खाना बनाए तो उसकी तारीफ ही करना चाहिए। अब एक साहब उस मजमे में बैठे थे, वो हर दिन अपनी बीवी को पीटते थे खाने के पीछे। ये लतीफा है हंसी के तौर पे, मैं अभी इसलिए बताना चाह रहा हूं कि आप पूरी तकरीर को तवज्जो से सुनो और उसका पसे मंजर समझें कि किस बात को कहां फिट करना है। अब वो तकरीर सुन रहे थे, अब ये अपने घर गए, इन्होंने सोचा आज बीवी की तारीफ करना। अब जब घर पहुंचे
तो उस दिन हुआ यह था कि इन साहब के बराबर में एक पड़ोसन रहती थी, उन्होंने कुछ दाल भिजवा दी थी। अब ये खाना खाने बैठे, जब खाना खाने लगे बड़ी तारीफ करने लगे, बहुत अच्छी दाल। अब बीबी ने एक बेलन लिया और 10 बेलन कर दिए, कहा हम रोज गोश्त बनाते बनाते मर गए और रोज पिटाई हो रही है, पड़ोसन से क्या तारीफ है, दाल भेज दी उसकी तारीफ कर रहे हो। तो तवज्जो से सुनना है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ का कुछ फिट कर दे। मैं कुछ बता रहा हूं, आप कुछ सुन जाएं तो आप हवाला याद रखिए, बुखारी मुस्लिम मुत्तफक अलैह, इमाम हाकिम ने इसको इख्तिसार के साथ रिवायत की। अब हदीस सुनिए, बड़ी दिलचस्प हदीस आ रही है और मैं हदीस से गुफ्तगू कर रहा हूं, बड़ी दिलचस्प हदीस है। आप मेरी तरफ तवज्जो रखें, मैं आपको बात समझा दूंगा। एक सहाबी हजरत उसैद बिन हुजैर, मेरी तरफ तवज्जो रखें, एक सहाबी हजरत उसैद बिन हुजैर रात का वक्त था, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। इनके बराबर में इनका बेटा सोया हुआ था जिसका नाम यहया था। अब बराबर में ही एक घोड़ा बंधा हुआ था। इन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू की, घोड़ा कूदने लगा। अब इनको ये फिक्र सताने लगी, ये खदशा सताने लगा कि अगर, एक मिनट, पानी जल्दी पिलाओ, तकरीब में डिस्टर्ब मत करो, बिल्कुल पानी पिला के अलग करो। मैं बगैर पानी के बोल रहा हूं तो मेरी तरफ भी तवज्जो रखी। अब हदीस सुनी, एक सहाबी रसूल थे, वो रात का वक्त था, कुरान पाक की तिलावत कर रहे थे। बराबर में इनका बेटा सोया हुआ था और वहीं पर बराबर में घोड़ा बंधा हुआ था। अब जैसे ही इन्होंने कुरान पाक की तिलावत शुरू की, घोड़ा कूदने लगा, घोड़ा कूदने लगा। अब इन सहाबी रसूल ने यह सोचा कि अगर मैं तिलावत करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये घोड़ा मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ पहुंचा दे जो बराबर में सो रहा है, कहीं मेरे बच्चे को ना दबा दे। इन्होंने तिलावत कुरान मजीद को कुछ देर के लिए बंद कर दिया। कुछ देर के बाद फिर तिलावत शुरू की। जैसे ही दोबारा शुरू की, घोड़ा फिर कूदने लगा। इन्हें फिर यही खदशा सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये घोड़ा मेरे बच्चे को दबा दे, मेरे बच्चे को कुछ तकलीफ पहुंचा दे। फिर तिलावत कुरान मजीद को बंद कर दिया। दोबारा फिर शुरू की, तीसरी मर्तबा कुरान मजीद की तिलावत को फिर शुरू किया, घोड़ा फिर कूदने लगा। फिर यही खदशा सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो मेरे बच्चे को ये तकलीफ पहुंचा दे। अब इन्होंने आखिरी मर्तबा हार खा के तिलावत कुरान मजीद को बंद कर दिया। बहुत तवज्जो से सुनिए, हदीस बड़ी दिलचस्प है, बड़ी दिलचस्प हदीस है। अब इन्होंने कुरान मजीद की तिलावत को बंद कर दिया। अब मुबारक हो उन लोगों को जिनके बेटे हाफिज कुरान हैं, जो लोग कुरान पढ़े हुए। जैसे ही तिलावत कुरान मजीद को बंद किया, इन्होंने देखा कि इनके घर से कुछ रोशनी आसमान की तरफ जा रही है। कुछ रोशनी ऐसी है जो इनके घर से उठी और आसमान की तरफ जा रही है। रात में ये देखते रहे यहां तक कि वो रोशनी इनकी आंख से गायब हो गई। अब सुबह हुई, सुबह को बारगाह रिसालत में हाजिर हुए, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, जब रात में कुरान मजीद की तिलावत कर रहा था तो मैंने जैसे ही तिलावत कुरान मजीद शुरू की, घोड़ा कूदने लगा, मैंने बंद कर दी। फिर तिलावत शुरू की, फिर घोड़ा कूदने लगा। मुझे खदशा सताने लगा कि कहीं ऐसा ना हो ये मेरे बच्चे को दबा दे। इन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह, मुझे खदशा सताने लगा कि अगर मैं तिलावत कुरान मजीद करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि ये घोड़ा मेरे बच्चे को दबा दे। जैसे ही मैंने बंद की तो या रसूल अल्लाह, मैंने कुछ रोशनी देखी जो जमीन से ऊपर को जा रही थी। मेरे घर से कुछ रोशनी चराग की शक्ल में आसमान की तरफ जा रही थी। या रसूल अल्लाह, वो क्या रोशनी थी, वो क्या चीज थी? तवज्जो चाहूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ तवज्जो रखें, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तिलकल मलाइकतु कानत तस्तमिउ लक वलौ क़रअत लअस्बअत यराहुन नासु मा तस्ततिरु मिनहुम। ऐ उसैद बिन हुदैर, ये रोशनी नहीं थी,
तवज्जो चाहूंगा, ये रोशनी नहीं थी जो रोशनी तुमने अपने घर से आसमान की तरफ जाते हुए देखी थी, वो रोशनी नहीं थी, बल्कि वो फरिश्ते थे जो अर्शे आज़म थे कुरान मजीद की तिलावत को सुनने के लिए आए थे। अगर तुम तिलावत कुरान मजीद करते रहते और सुबह हो जाती तो तुम इन फरिश्तों को अपनी आंखों से देख लेते। ये है आज। आप जरा सोचिए, आप किसी हाफिज कुरान को कभी हल्के में मत लेना, क्योंकि उसके सीने में वो कुरान मौजूद है जिसको सुनने के लिए अर्शे आज़म से फरिश्ते आते हैं। ये है, इस कुरान से आज हमें ताल्लुक जोड़ने की जरूरत है। इस कुरान से आज हमें अपना रिश्ता मजबूत करने की जरूरत है। आज हम कुरान तो पढ़ते हैं, कुरान हिफ्ज़ भी करते हैं, लेकिन आज हम उसकी तालीमात पर अमल नहीं करते, उसकी सीरत पर अमल नहीं करते। तारीख के औरात पलट कर देखो, करबला के अंदर मुसलमानों का कुरान से ताल्लुक मजबूत था, बातिल को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। आज हजारों हैं, कुछ नहीं कर पा रहे, क्योंकि कुरान से ताल्लुक कमजोर हो गया। अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको कुरान पाक की तालीम पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।